درد سہ کبھی تیرا نام لیے۔ آپ نے کہا میں نہیں پوچھوں گی، پوچھنا ہے تو آپ پوچھو۔ عبد المطلب نے فرمایا آج سے پہلے کبھی نافرمانی نہیں کی، آج کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں پرسوں میں نے آمنہ سے پوچھا تھا آمنہ سو کیوں نہیں مناتی ہو؟ ایک نور آمنہ کی پیشانی سے نکلا، میری پیشانی میں لگا، میں زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ۔ میں نہیں پوچھوں گی، پوچھنا ہے تو آپ ہی پوچھ لو۔ عبد المطلب حضرت آمنہ کے سامنے پوچھے، آمنہ ادب کے لیے کھڑا ہو گئی۔ آپ نے کہا بیٹی آمنہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے ہمارے خاندان میں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 1 سال تک وہ عورت نہ تو کنگھا کر سکتی ہے، نہ خوشبو لگاتی ہے، نہ سر میں تیل ڈالتی ہے۔ آمنہ تم عبداللہ کا شوق کیوں نہیں مناتی ہو؟ بیٹی جس کمرے میں رہتی ہو وہ کمرہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔ حضرت آمنہ نے اتنا سنا تو رونے لگی، کہا بابا جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے میں نے کسی سے اپنا ٹکڑا نہیں کہا، بابا مجھے کہاں چین ہے، میری زندگی اجیرن بن چکی ہے، میری زندگی میں اندھیرے چھا چکے ہیں۔ بابا جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے میں صبح کو روتی ہوں شام کو روتی ہوں، بابا پوچھ لیا ہے تو اب سن ہی لیں۔ اے میرے بابا یہ تو کوئی کمال نہیں، یہ جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو آمنہ کو سلام کہتا ہے، بابا یہ میرا کمال نہیں بلکہ میرے شکم میں جو عبداللہ کی امانت ہے یہ اس بچے کا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا بابا یہ تو کوئی کمال نہیں، جب میں پہلے کنویں پر جاتی تھی تو ڈول ڈال کے پانی نکالنا پڑتا تھا، اب جب کنویں پر جاتی ہوں تو مجھے دیکھ کے کنویں کا پانی اوپر کو آ جاتا ہے۔ بابا یہ تو کوئی کمال نہیں۔ مکہ کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ جلدی نہ جایا کرو اس لیے کہ تم ہوتی ہو تو پانی آسانی سے مل جاتا ہے، تم چلی جاتی ہو تو ڈول ڈالنا پڑتا ہے۔ بابا یہ تو کوئی کمال نہیں، جب میں پیڑوں سے گزرتی ہوں تو پیڑ سلام کہتے ہیں، جب پتھروں سے گزرتی ہوں تو پتھر سلام کہتے ہیں۔ بابا جب میں جنگلات میں جاتی ہوں تو آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک امی یا رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پہ درود و سلام ہو۔ بابا یہ تو کوئی کمال نہیں، یوں لگتا ہے جیسے آسمان کے ستارے میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ جمیل قادری کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام بت شکن کعبے میں آیا، منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، زمین جانتی تھی وہ نبی آئے گا، کائنات جانتی تھی وہ نبی آئے گا، جس کے صدقے میں چاند بنا وہ پیغمبر آئے گا، جس کے صدقے میں سورج بنا وہ پیغمبر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور ہمارے نبی کے درمیان 570 سال کا زمانہ گزرا۔ کتنا زمانہ؟ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ آپ سوچے تو صحیح، اگر مسجد کا امام 1 مہینہ مسجد میں نہ رہے تو لوگ اپنی طرف سے مسئلے گڑ گڑ کے بیان کرنے لگتے ہیں۔ کتنے دنوں؟ 1 مہینہ، 570 سال کا وقت گزر گیا تھا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ کیا حال ہو گیا تھا مکہ والوں کا؟ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا۔ بیٹی کہتی تھی بابا اگر کھانا نہیں ہے بھوکی رہ لوں گی مگر یوں رسوا تو نہ کر، اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے اللہ اکبر برہنہ رہ لوں گی مگر یوں مجھے ذلیل تو مت کر، مگر باپ بیٹی کو زندہ دفنا دیتا تھا۔ بیٹیاں کہتی تھی مولا بھیج دے اس پیغمبر کو جو تمام زمانے کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ کیا حال ہو گیا تھا مکہ والوں کا؟ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا اسے 40 دن تک ایک بند کمرے میں رکھا جاتا، اسی میں کھاتی تھی، اسی میں پیتی تھی، اسی میں نہاتی تھی، اسی میں پیشاب پیخانہ کرتی تھی، بیچاری خود کے مر جاتی، بدبو سے مر جاتی۔ اگر 40 دن کے بعد بچ جاتی تو اس کے سر کے بال مون کر کے، چہرے پہ کالک لگا کر کے، اس کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال کر کے تمام مکہ میں گھمایا جاتا۔
जाता, पत्थर मारे जाते और कहा जाता ये वो मनहूसा है जिसकी वजह से इसके शोहर का इंतकाल हुआ है। वो औरत आसमान की जानिब देखती थी और कहती थी ए रब्बे काबा, भेज दो उस पैगंबर को जो इब्राहिम की दुआ बन के आने वाला है, भेज दो उस पैगंबर को जो ईसा की खुशखबरी बन के आने वाला है। इसी हिंदुस्तान में गंगा यमुना के किनारे जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता, उसके शोहर की चिता पे उसकी जवान बेटी को लिटा दिया जाता। बाप के दिल में दर्द तो है, भाई भी मौजूद है, चचा भी वही मौजूद है। बेटी कहती थी बाबा मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, इसमें मेरा कसूर क्या है? ऐ मेरे भाई, मैं तो तेरी बहन हूँ, तेरा खून हूँ, यूं मुझे क्यों जिंदा जला रहा है? तो बाप कहता था ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, सुन ले, मैं समाज से नहीं टकरा सकता, मैं सोसाइटी से नहीं लड़ सकता। जिंदा दफन होने वाली वो लड़की कहती थी ऐ आसमानों के मालिक, ऐ जमीन के खालिक, भेज दे उस अवतार को जो हमारे लिए नजात बनकर आएगा। बेटियां रो रही थी, बेवाएं चिल्ला रही थी, सती होने वाली लड़कियां दहाड़ रही थी। ऐसे वक्त में जब इंसानियत सिसक रही थी, ठीक 12 रबी नूर के दिन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, अब्दुल्ला के घर में, आमना की गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। आसमानों में सदाएं गूंजी, बच्चियों मुबारक हो, तुम्हें बचाने के लिए अल्लाह का पैगंबर आ गया है। बेवाओं मुबारक हो, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मोहम्मद अरबी आ गया है। गुलामों मुबारक हो, तुम्हारा हक दिलाने के लिए आमीना का बेटा आ गया है। तो मैं क्यों ना बोलूं, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला? कोई पर्दे से क्या निकला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आले हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्का में हुए पैदा घर घर में उजाला है। बज़ाहिर तो हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को मेरे सरकार ने पाला। आखिरी चंद जुमले तकरीर खत्म। नबी पैदा हुए मक्का में, आमीना की गोद में। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं 4:30-5 बजे का वक्त था, सुबह सादिक था। मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा काबे में जितने बुत थे थर थरा कर गिर पड़े। काबे में आया, सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा सलातु वस्सलाम। कहते अभी मैं ताज्जुब में था, हैरान था, परेशान था। मेरी लोंडी मुस्कुरा कर आई, सलाम के कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अल्लाह ने अब्दुल्ला को बेटा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते इतना हसीन बच्चा मेरी आंख ने कभी देखा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा के साहबी कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरकतुवैनी, मेरी आंख ने मुस्तफा तेरे जैसा हसी देखा नहीं कोई तो होगा। नबी के साहबी कहते वो अजमल मिन कलम तली दिन निसा, देखता कैसे मुस्तफा के जैसा खूबसूरत किसी माँ ने जाना ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो जब जना होता कहते ऐसा हसीन बेटा मेरी आंख ने कभी देखा नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब कहते काबा झुका, झूमने लगा। मैं अभी ताज्जुब में था, बड़ी खुशी हुई पोते की आमद की सुनकर। मैं काबे के बाहर निकला, जब मैं काबतुल्लाह के बाहर गया तो मक्का के कुफार ने मुझे घेर लिया। अबू जहल बोला अब्दुल मुत्तलिब आज तो कमाल हो गया। अबू लहब बोला बाबा आज तो कमाल हो गया। उमैया बोला आज तो कमाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते क्या कमाल हुआ? तो काबे के तमाम कुफार ने कहा था ऐ अब्दुल मुत्तलिब हमने देखा काबा गिर रहा है, मगर काबा गिरते गिरते फिर से सीधा हो गया। हम सोच रहे थे काबा गिर जाएगा, मक्का में फसाद पैदा हो जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा दिए, कहते हैं ऐ मक्का के लोगों ये बताओ काबा किधर को झुक रहा था? क्या शुमाल को झुक रहा था? मक्का वाले बोले नहीं नहीं। क्या जुनूब को झुक रहा था? मक्का वाले बोले नहीं नहीं। क्या मगरिब को झुक रहा था? मक्का वाले बोले नहीं नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम ही बता दो काबा किधर को झुक रहा था? तो मक्का के लोगों ने कहा काबा मशरिक को झुक रहा था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये बताओ सिमत मशरिक में क्या है? तो मक्का के लोगों ने कहा था मशरिक की जानिब अब्दुल्ला का घर है। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, कहते मक्का के लोगों काबा झुक नहीं रहा था, बल्कि आमना की गोद में काबे का काबा आ गया है। काबा अपने काबे
को सलामी पेश कर रहा था, अपने काबे का इस्तिकबाल कर रहा था। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आएगी सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। चंद निकाह सुने बात खत्म। नबी पैदा हुए आमना की गोद में। अब्दुल मुत्तलिब कहते जब मैं अपने दौड़ा दौड़ा घर गया, मैंने देखा आमिना के कमरे के दरवाजे पे एक आदमी नंगी तलवार लिए खड़ा है। मैं आगे बढ़ा, रोक लिया। मैंने कहा रोक तक किसको है, मेरा घर है। उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब, जब तक आसमानों जमीन के फरिश्ते मोहम्मद का दीदार न कर ले, दुनिया के आदमी को देखने की इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे मुस्तफा की। क्या शान है मुस्तफा की? जब तक फरिश्ते ना देखें, इंसान को, बशर को देखने की इजाजत नहीं है। नबी पैदा हुए आमना की गोद में। हजरत आमना ने मुस्तफा को देखा, मुस्कुराई, कहती इतना हसीन बेटा। क्या कहती है? बात समझ में नहीं आई आपके? बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 5-7 मिनट और फिर सलाम। इतना हसीन बेटा। अरे मैं कहूँ अपने बेटे को तो हर माँ हसीन कहती है। बेटा अगर काला है तो माँ की नजर में चांद है, बेटा अगर बुज़दिल है तो माँ की नजर में शेर है, बेटा अगर भैंगा है तो माँ की नजर में हसीन है। आमिना कहते इतना हसीन बेटा मेरी आंखों ने कभी देखा नहीं है। सुभान अल्लाह। बेशक। इतने में दाई हलीमा आ गई। हलीमा कहते आमिना तूने देखा क्या है? हाशमी देखे, कुरैशी देखे। हलीमा से पूछ। हलीमा ने मुख्तलिफ बस्तियां देखी हैं, हलीमा ने मुख्तलिफ कबाइल देखे हैं। मुझसे पूछ, मोहम्मद के जैसा हंसी मेरी आंख ने कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। इतने में ज़्यादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। कहने लगे हलीमा तुमने क्या देखा? चंद खानदानी, चंद कुरैशी हाशमी बनी ज़हरा वाले। हलीमा तूने क्या देखा? चंद कबाइल, चंद बस्तियां। अब्दुल मुत्तलिब से पूछ, जब मैं तिजारत करता था मैंने मुल्क यमन देखा, मुल्क शाम देखा, वहाँ के महल देखे, वहाँ के बाजार देखे। कहते खुदा की कसम मोहम्मद के जैसा हंसी मेरी आंख ने कोई नहीं देखा। जब कह चुके, आमिना कह चुकी, हलीमा कह चुकी, अब्दुल मुत्तलिब कह चुके, रब ने फरमाया जिब्रील तू भी बोल। सुभान अल्लाह। रब ने क्या कहा? जिब्रील तू भी बोल। जिब्रील कहते आमिना तूने क्या देखा? चंद कबीले। हलीमा तूने क्या देखा? चंद बस्तियां। अब्दुल मुत्तलिब तूने क्या देखा? चंद शहर, चंद मुल्क। अरे आमद रसूल को पूछना है, अजमत रसूल को पूछना है तो जिब्रील से पूछो। जिब्रील कहते हैं मैंने हर पैगंबर को देखा, हर रसूल को देखा, हर जमाने को देखा। अगले जुमले सुने। जिब्रील कहते हैं मैंने आदम को मैदान अराफात में रोते देखा, मैंने नूह को कश्ती का मल्ला बनते देखा, मैंने इब्राहिम को नाने नमरूद में कूदते देखा, मैंने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी के नीचे आते देखा, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे रब से बातें करते देखा, मैंने ईसा रूहुल्लाह को आसमानों पे बुलंद होते देखा। जिब्रील कहते हैं वक़्तान आई दिया हुन्ना, मैंने उसको भी देखा जिसे देख के मिस्र की औरतें पागल हो गई थी, दीवानी हो गई थी। जिब्रील कहते हैं हर पैगंबर देखा, हर रसूल देखा, हर जमाना देखा, मगर मेरी आंख ने मोहम्मद के जैसा हंसी किसी को नहीं देखा। रब ने पुकारा तुम सारे देखते जब मैंने मोहम्मद के जैसा किसी को बनाया होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह फरमाते मुझे मेरी उलूहियत की कसम मैंने मोहम्मद के जैसा हंसी किसी को बनाया ही नहीं। मेरा इमाम पुकारता है यही बोले सिद्र वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मुस्तफा पैदा हुए कहाँ? आमिना की गोद में। हजरत आमिना पहले तो खुश हुई, फिर मुस्तफा को देखकर रोने लगी। आवाज आती है आमिना क्या हुआ? कहती काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते। फिर क्या होता? आमिना कहती है आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो मेरे बेटे के लिए खिलौने लेकर आते, इसलिए कि हर बाप अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आता है मुख्तलिफ अक़साम के, मुख्तलिफ बाजारों से, मुख्तलिफ मेलों से। आवाज आती है आमिना रोने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी हिकमत
हिम्मत से हुआ है। अब्दुल्ला जिंदा होते खिलौने लाते मिट्टी के, खिलौने लाते लोहे के, खिलौने लाते मिट्टी के, खिलौने लाते लकड़ी के, खिलौने लाते पीतल के। आमीना अपने बेटे को खेलने के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बेटा खेलने के काबिल हो जाएगा, ये आसमान की जानिब उंगली उठाएगा, मैं चांद सितारों को इसका खिलौना बना दूंगा। मेरा इमाम कहता है चांद छुप जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा कहते एक दिन मैंने चांद को देखा। किसे देखा बोले? चांद को देखा। कहते हैं कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। मैंने कहा मौला ये चांद को हुआ क्या? फिर मैंने पालने में अपने बेटे मोहम्मद को देखा, यूं उंगली करता है तो चांद इधर को जाता है। मेरा बेटा यूं उंगली करता है तो चांद इधर को जाता है। मैं समझ गई चांद को कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरे बेटे मोहम्मद अरबी का काम है। सुभान अल्लाह। आमिना की आंखों में फिर आंसू आए। आवाज आती है आमना अब क्या हुआ? कहती काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते। आखिरी जुमला और सलातो सलाम, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते। अल्लाह अकबर आवाज आती है आमिना परेशान मत हो, इस बच्चे के साथ एक तेरा ताल्लुक है। जब तू इसे इसके निस्बत से देखती है तो ये तुझे तेरा बेटा नजर आता है। इस बच्चे से एक मेरा ताल्लुक है, इसे मेरी निस्बत से देख। मैंने इसे अपना महबूब बनाया है, मैंने इसे साहिबे काबा कौसैन बनाया है। हजरत आमिना कहती है काश अब्दुल्ला जिंदा होते। आवाज आती है आमिना फिर क्या होता? अल्लाह अकबर। आमिना कहती है अब्दुल्ला जिंदा होते मेरे बेटे को सैर के लिए लेकर जाते मक्का के किसी बाजार में, मक्का की किसी वादी में, मक्का के किसी पहाड़ पर। आवाज आती है आमिना परेशान मत हो, अपने बेटे को सैर के काबिल तो हो लेने दे। जब तेरा बेटा सैर के काबिल हो जाएगा मैं इसका हाथ पकड़ूंगा, इसे अर्शे आजम का मेहमान बना लूंगा, इसे ला मक्का का मक्की बना लूंगा। तसब्बुर करो सबे असरा की रात को, तसब्बुर करो सबे मेराज की रात को। जिब्रील नीचे है, आमिना का लाल जिब्रील से भी ऊपर है, इजराइल नीचे है, आमिना का लाल उससे भी ऊपर है। जब मेरे नबी पहुंचे खुदा के सामने तो नबी शर्माने लगे, नबी को हया आने लगी। अल्लाह ने फरमाया पल के उठाओ, शर्माना छोड़ो, अपने रब का दीदार करो। इसलिए कि महबूब व मुहिम में शर्म नहीं होती है, महबूब व मुहिम में पर्दा नहीं होता है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है खुले जो कसरे तना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर? खबर कौन दे? या तो खुदा था या मुस्तफा था, तीसरा कोई था ही नहीं। जिब्रील नीचे, मुस्तफा उनसे भी आगे, खबर कौन दे? तीसरा कोई था ही नहीं। इजराइल नीचे, नबी उनसे आगे, हजरत इस्माइल नीचे, मुस्तफा उनसे भी आगे, आदम अलैहिस्सलाम पीछे, मुस्तफा उनसे भी आगे। रब ने फरमाया महबूब शर्माने की जरूरत नहीं है, आ मेरे गले लग जा, आ मुझसे मुसाफा कर ले, आ मुझसे मुआनिका कर ले। मेरा इमाम पुकारता है खुले जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे? उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे वो सरवरे किस्मरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तुरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। रब ने फरमाया आमिना इसे सैर के काबिल तो हो लेने दे। जब ये सैर के काबिल हो जाएगा मैं हाथ पकड़ूंगा, अर्श आजम का मेहमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल महबूब अपनी उम्मत से कह दो बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब अल्लाह का फजल उसकी रहमतें तुम पे नाजिल हो तो खुशियां मनाया करो। सुभान अल्लाह। आखिरी बात समझा दूं इंशाअल्लाह आयत के ताल्लुक से। आँख खुदा की नेमत है कि नहीं? बोलो। आँख की कीमत उससे पूछो जो अंधा हो, जबान खुदा की नेमत, जबान की कीमत उससे पूछो जो गूंगा हो, पैर खुदा की नेमत, पैर की कदर उससे पूछो जो लंगड़ा हो। अल्लाह ने जबान दी, एहसान नहीं फरमाया। अल्लाह ने कान दिए, एहसान नहीं फरमाया। अल्लाह ने आंख दी, एहसान नहीं फरमाया। अल्लाह ने पैर दिए, एहसान नहीं फरमाया। इसलिए कि आंख मुतवस्सित नेमत है, कान मुतवस्सित नेमत है, पैर मुतनस्सित पैर अल्लाह अकबर एक आम नेमत है। जितनी भी नेमतें खुदा ने दी है
ہے دنیا میں، سب عام نعمتیں ہیں، پانی سب کے لیے ہے، زبان سب کے لیے ہے، کان سب کے لیے ہے، مگر ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر بھی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے کہ جب پیغمبر دنیا میں آیا، رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں تم پہ احسان کر رہا ہوں، تمہیں اپنا رسول دے رہا ہوں، میرے حبیب کو دل میں بتانا تمہارا کام ہے اور تمہاری بخشش فرمانا خدا کا کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اولاد سے بڑی نعمت کون بولو؟ کون ہے بولو؟ ہمارے نبی۔ کون ہے؟ ہمارے زبان سے بڑی نعمت کون؟ ہمارے نبی۔ تیرا بیٹا 1 سال کا ہو تو بیلون بھی لگا رہا ہے، گھر بھی سجا رہا ہے، دوستوں کو بھی بلا رہا ہے، گانے بھی بجا رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، اور تیری اولاد تو مصطفیٰ کی نعمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ کائنات ایک پلے میں، آمنہ کا محبوب ایک پلے میں، تولا جائے گا تو کائنات مصطفیٰ کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے۔ تیرا بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں منائے، اور جشن آمد رسول کو کہتا ہے جائز نہیں ہے، بھائی علاج کراؤ اپنا۔ مصطفیٰ اللہ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت۔ ان 4 مصروں کے بعد کو سمجھا دوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ حبیب کی محبت عطا فرمائے، ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے۔